Assalamu alaikum everyone and Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This video is going to be specifically for O level and IGCSE physics. If you want a video for the entire किस तरीके से आपने 5 सब्जेक्ट्स करने हैं 6 सब्जेक्ट्स करने हैं that's another video that has already been uploaded. You can watch that, but this is going to be specifically for physics कि आपने physics कैसे इस करनी है. देखिए, physics, if I'm being honest, is not an easy subject. If you compare them to with chemistry, bio, English, or computer science, I would always rate physics to be a relatively difficult subject. And उसके reasons कुछ ये हैं. First of all, it's more mathematical. मैथमेटिकल में कुछ स्टूडेंट्स रह जाते हैं जिनकी मैथ ज़्यादा अच्छी नहीं होती. एंड इट्स ऑल्सो थ्योरेटिकल. तो जिन लोगों को चीज़ें याद नहीं होती वो भी थोड़ा रह जाते हैं. तो ओवरऑल दिस इज़ अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट एंड स्टूडेंट्स टेंड टू रियली मैस अप. But there's always a way to do this. Achha, this video is for both IGCSE and O level. So I'm going to be using the words as MCQ paper, theory paper, and ATP paper. Okay, O level mein that's 1, 2, 4, and IGCSE mein that's 2, 4, and 6. So I'm going to be sharing my screen. इस पे कोर्स लिखा हुआ है एंड देन वी गोना डिस्कस कि आप लोगों ने अगले 45 डेज में या एक्चुअली अगले 40 डेज में अपना कोर्स किस तरीके से करना है एंड व्हाट शुड बी योर स्टडी प्लान. Already divided the course into three segments. That's easy chapters, medium chapters, and those difficult chapters. Basically, chapters नहीं sections. आपके कोर्स में 6 sections होते हैं and I've already divided them. Easy में you have nuclear, thermal, medium में you have space and light, and difficult में you have general and electricity and magnetism. Okay. So now what you need to do is, guys, आपको पता होना चाहिए ये जो दो हैं दे कॉन्स्टिट्यूट अराउंड 50% ऑफ योर पेपर या 40 हम 45% कह सकते हैं. ठीक है, 45% ऑफ योर पेपर कम्स फ्रॉम दीज टू सेक्शंस. 35% comes from these two sections and only 20% comes from these two sections. Okay, तो इस तरीके से आपका पेपर ऑलमोस्ट डिवाइड होता है. आई एम प्रीटी श्योर ये ऐड अप आप करें तो आपके पास 800 ही आएगा. या इट इज. So now what you need to do is you only have 45 days left, 45 days. And 45 days, if you haven't done the course yet, you still need to do a lot of topicals. So what we're going to do is we're going to give 25 days to topicals. ठीक है, we're going to be giving 25 days to topicals and plus 20 days to yearlies. Because I'm a big advocate कि आपने O levels में you should be doing yearlies, and once you do a few yearlies then you go back to topicals कि आपको पता लगे कि अच्छा ये मेरा टॉपिक नहीं आ रहा, मैं वापस जाके करता हूँ. ठीक है, so you need to learn a lot from your yearlies. We'll start with the topicals वाला part. First of all, guys, you need to focus on your red chapters. Now, what are red chapters? Red chapters are those chapters that you do not know yet. ये sections की मैं बात नहीं कर रहा. I'm talking about chapters. हर section में there is a lot of chapters. Okay, so you need to focus on those chapters जो अभी आपके red chapters है, जो अभी आपको बिल्कुल नहीं आते या you're really struggling with them. Let's suppose आप कहते हैं कि मुझे work power energy नहीं आता. तो your first priority is to complete work power energy rather than completing all the other things. देखें, जो चैप्टर आपको आता है, ऑफ कोर्स देयर अराउंड 22 चैप्टर्स आपके पूरे कोर्स में, 22 डिपेंडिंग आपका टीचर कैसे डिवाइड करता है. आपको कुछ तो आता होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं आता. तो इन दैट केस व्हाट यू डू इज यू नीड टू फोकस ऑन दोज चैप्टर जो आपको बिल्कुल नहीं आते. लेट्स सपोज आपका मुझे ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी नहीं आता, मुझे कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन नहीं आता. सो यू नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू डू दैट. पहले फोकस ऑन योर फ्लॉज. यू हैव टू फोकस ऑन योर फ्लॉज या मिसिंग, जो आप चीज़ें आप लोगों ने जो चैप्टर्स मिस किए हैं ना, जो आपके दिमाग में जो, देखिए दिमाग, फिजिक्स ना अगर आपने अपने दिमाग में बढ़ानी है तो इट्स लाइक अ रोड मैप, इट्स लाइक अ मोटरवे. अगर आपने पेशावर से, लेट्स सपोज पेशावर से आपने लाहौर तक जाना है, यू गो फ्रॉम पेशावर टू इस्लामाबाद, दैट्स M1. देन यू गो फ्रॉम इस्लामाबाद टू लाहौर, दैट्स M2. अभी जब आप M1 और M2 पे गुजरते हैं, अगर ये बीच में इसका रोड टूटा हो तो आप लाहौर मुश्किल से पहुंचेंगे ना, आपको ज़्यादा टाइम लगेगा. तो यू नीड टू मेक श्योर कि मिसिंग पीसेस आपके कोर्स में बिल्कुल भी ना हो. आपकी जो आपकी ट्रेन ऑफ थॉट है ना, जो आपकी पटरी है, उस पटरी को आपने पूरा करना है. यू हैव टू मेक श्योर कि एटलीस्ट हर जगह कुछ ना कुछ हो, और ये ना हो कि एक जगह पे खंदक बनी हो. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्टूडेंट्स व्हाट दे टेंड टू डू इज दे कीप ऑन डूइंग चैप्टर्स दैट दे नो नो नो, दैट्स जस्ट प्रोडक्टिव प्रोक्रास्टिनेशन. प्रोडक्टिव प्रोक्रास्टिनेशन से कुछ भी नहीं होता. ठीक है, तो 25 डेज, इवन इफ यू, आई एम अज्यूमिंग अगर आपको 22 में से आधे चैप्टर्स भी आते हैं तो अभी आपके 10 चैप्टर्स रहते होंगे. एंड यू कैन easily do one chapter a day. If I'm being honest, one chapter a day is completely possible. तरीका क्या है? एक चैप्टर का अब थोड़ा टाइम कम रह गया है, वैसे तो आइडियल केस इसके यू डू 40 MCQs
प्लस 10 थ्योरी क्वेश्चंस फॉर ईच चैप्टर। बट द थिंग विद फिजिक्स इज कि इसके चैप्टर्स काफी जगहों पे बहुत ज्यादा सब डिवाइडेड हैं। लेट्स सपोज वेक्टर्स अगर आप एज अ चैप्टर पढ़ते हैं तो उसके तो आपको कभी 40 सवाल मिलेंगे ही नहीं, ठीक है। तो दोज लाइक व्हाट 15-20 क्वेश्चन इन द लास्ट 5 years आपको मिलेंगे। एंड आपने याद रखें जो आपने टॉपिकल्स करनी है दैट इज 2020 टू 2025, सही है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज कि यू नीड टू डू इतने क्वेश्चंस एट दिस पॉइंट। पहले तो मैं कहता था 40 एमसीक्यूज एंड 10 थ्योरी, अब यू जस्ट हैव टू डू इनफ दैट यू नो द टॉपिक। अब आई ब्रॉट दिस डाउन टू 30 एमसीक्यूज प्लस 7 थ्योरी। खैर अभी आप 30 एमसीक्यूज और 7 थ्योरी भी कर लें तो आप लोगों का काम हो जाएगा, ठीक है, पर चैप्टर। अभी जो आपको चैप्टर्स नहीं आते पहले उन पे फोकस करें। अब जैसे मैंने आपको कहा ना, मुझे थर्मल फिजिक्स में एक ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी नहीं आता था, तो मैंने सबसे पहले वो करूंगा। मुझे लेट्स सपोज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल नहीं आता, मुझे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल नहीं आता। अच्छा, कमिंग टू इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ओके, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, ये मैं बाकी तो आप लोग मीडियम इजी कर लेंगे, मैं जरा डिफिकल्ट वालों को डिस्कस कर लेता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, गाइस यू नीड टू रियली अंडरस्टैंड द कोर कॉन्सेप्ट। ये याद रखें, ये दो चैप्टर्स रट्टे पे कभी भी नहीं होते, बाकी सारे रट्टे पे हो जाते हैं। ये दो का आपका कोर कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। अब अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एट दिस पॉइंट उनको ये भी नहीं पता कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड किधर इस्तेमाल होता है, लेफ्ट हैंड किधर इस्तेमाल होता है। लेफ्ट हैंड कब होता है, जब हमारे पास देयर इज अ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। जब मेरे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, उस पर जब फोर्स अप्लाई होती है ड्यू टू द करंट, फ्लो ऑफ करंट, दैट्स योर लेफ्ट हैंड रूल। राइट हैंड रूल कब होता है, जब मेरे पास करंट बनती है, जब मेरे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होती है, जब मेरे पास लेंस लॉ अप्लाई हो रहा होता है, ऑल ऑफ दैट स्टफ एक्स वाई जी, वो पूरी अलग कहानी है। बट व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग ओवर हियर, गाइस यू नीड टू फोकस ऑन द कोर कॉन्सेप्ट की चीज क्या है। लेफ्ट हैंड रूल मैंने मोटर में इस्तेमाल करना है, राइट हैंड रूल मैंने एसी जनरेटर में इस्तेमाल करना है। बच्चों को अभी तक ये नहीं पता। तो अगर आप लोगों को ये चीज़ें नहीं पता तो आपको कैसे करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी में आपको थर्मिस्टर नहीं पता, एलडीआर नहीं पता, एलईडी नहीं पता, वेरिएबल रेजिस्टर नहीं पता, रियोस्टैट नहीं पता, सेम थिंग। अब थर्मिस्टर क्या है, थर्मिस्टर क्या होता है, जब हमारे पास टेम्परेचर ज़्यादा होता है रेजिस्टेंस कम होती है। एलडीआर क्या है, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। क्या होता है एलडीआर में, जब हमारे पास टेम्परेचर लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, रेजिस्टेंस मेरे पास कम होती है। मेरे पास एंड देयर थाउजेंड अदर, मेरे पास एक सेमीकंडक्टर डायोड है, उसकी डायरेक्शन क्या है, फ्लो ऑफ करंट को वो कैसे कंट्रोल करता है। ये छोटी छोटी बातें होती हैं। बट ये छोटी छोटी बातें जब आपको नहीं पता तो आप किस तरीके से करेंगे। एंड इसके बाद में बड़ी एक मजे की बात बताता हूँ, दिस इज समथिंग आई ऑलवेज टेल माय स्टूडेंट्स, वो बड़े हैरान हो जाते हैं इस बात पे। एंड दैट इज कि आप लोग एक चीज में बड़ा कंफ्यूज होते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में। व्हेन यू आर स्टडिंग दैट यू गो फॉर पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट, कि सर ये पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट क्या होता है, मैं तो आज तक ये समझ ही नहीं आया पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट, हमारे टीचर्स ने हमें नहीं पढ़ाया ये होता क्या है। एवरी सीरीज सर्किट इज अ पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट। अब व्हेन आई एम गोना बी टेकिंग माय मैराथन में आपको ये सब कुछ सिखा दूंगा, वो तो इतने को मसले की बात नहीं है। बट दिस इज वेरी बेसिक स्टफ दैट यू नीड टू नो। देखिए क्वेश्चन करना बात की बात होती है, पहले आपको कोर कॉन्सेप्ट तो हो ना। कमिंग टू जनरल फिजिक्स, जनरल फिजिक्स में आपको मोशन है, डायनामिक्स है, वर्क, पावर, एनर्जी, वेक्टर्स, प्रेशर एंड व्हाट नॉट, मोमेंट्स, ठीक है, डेंसिटी, एक्स वाई जी, इतने टॉपिक्स हैं। यू नीड टू नो द कोर प्रेशर। कोर प्रेशर कहता हूँ, कोर व्हाट डू यू कॉल, आपको कोर कॉन्सेप्ट आना चाहिए हर चैप्टर का। once you know the concept, once you have those very basic but very precise concise notes, then you can use those and then you can do these topicals। फिर अपना फोकस करें, अपने लिए चीट शीट्स बनाएं, अपने लिए चीट शीट वो एग्जाम में चीट करके नहीं लेके जानी। मेक चीट शीट्स फॉर योरसेल्फ। मेक मेमोनिक्स, मेमोनिक्स होते हैं बेसिक छोटे छोटे तरीके से मैंने लिखे हैं अपने पॉइंट्स में लिखे हो कि बस अगर मैं वो चैप्टर कर रहा हूँ या मुझे भूल जाए तो आई कैन जस्ट गो ओवर देम वेरी इजली। डू दिस स्टफ, स्टार्ट डूइंग दिस स्टफ एंड यू विल सी कि आप कैसे एक्सपोनेंशियली आपका जो ग्रोथ होती है आपके कॉन्सेप्ट्स की। क्योंकि गाइज याद रखें, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि नेवर नेवर एंड नेवर नेवर स्टॉप स्टडिंग। वंस यू स्टॉप स्टडिंग तो आपका मोमेंटम जीरो हो जाता है। याद रखें, इट्स ईजियर कि अगर आपके थोड़ा सा मोमेंटम हो ना तो आपको कोई धक्का लगाए तो आप और तेज हो जाए। बट इफ यू स्टॉप स्टडिंग ना, तो गाड़ी जब रुक जाए ना, एक बार बंद हो जाए, फिर उसको स्टार्ट करना ना, चलती हुई गाड़ी को कहते हैं ना सेल्फ दो, जो जो मैनुअल गाड़ी जिसने चलाई हुई, चलती हुई गाड़ी को सेल्फ दो, बड़ी जल्दी से फिर से स्टार्ट हो जाती है। बट एक बार जो गाड़ी रुक जाइए ना, उसको सेल्फ भी दो तो वो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। मतलब इट टेक्स, यू हैव टू गिव इट मोर, मोर पुश। तो याद रखें कि मेक श्योर कि मोमेंटम नेवर गोज टू जीरो, आप कुछ ना कुछ पढ़ रहे हो। कमिंग बैक टू दिस, तो योर फोकस शुड बी कि आप, अगर आप लोगों को मैं एक स्टडी प्लान बनाऊं, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो फॉर जनरल फिजिक्स, यू कैन गिव अराउंड 6-7 डेज टू दिस टॉपिक, ओके। आप 6-7 डेज भी दें कोई मसला नहीं है, दिस टॉपिक डिजर्व 6-7 डेज। फिर उसके बाद आप एक इजी चैप्टर कर लें, डू स्पेस फिजिक्स, स्पेस फिजिक्स विल मैक्सिमम टेक 2 days। एंड देन न्यूक्लियर फिजिक्स, दिस शुड टेक 1 day 8 max।
मतलब इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट ना, न्यूक्लियर फिजिक्स एक दिन से ज़्यादा का नहीं है। तो देखें ये आपके पास तकरीबन 10 दिन हो गए। 10 दिन में आपने ऊपर वाले एक डिफिकल्ट, एक मीडियम और एक ईजी कर लिया। नाउ इधर नीचे वाले पे आते हैं। नीचे वाले पे हमने इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म को, चूंकि बच्चों को ज़्यादा मुश्किल लगता है, मैं इसको 8 डेज देता हूँ। लाइट एंड वेव्स इज डिफिकल्ट, तो वी कैन गिव 4 डेज टू दिस। तो ये 12 हो गए, एंड वी कैन ऑल्सो गिव 2 डेज टू थर्मल फिजिक्स। तो अभी भी आप इस तरीके से भी इसको फॉलो करें, वेर यू आर डिवाइडिंग दिस एंड यू स्टडिंग फिजिक्स फॉर 1.5 आवर या 2 आवर्स डेली, दैट इज द मिनिमम। 1 आवर तो मिनिमम है ही अब ना डेली का, बट इट कैन गो फ्रॉम 1 आवर टू 2 आवर्स, 3 आवर्स। अब तो आपको पूरे दिन पढ़ना ही चाहिए ना। अब स्कूल, इफ यू गोइंग टू स्कूल, स्टॉप गोइंग टू स्कूल। इफ यू गिविंग मॉक्स, स्टॉप गिविंग दोज मॉक्स। You need to focus on what you're doing, make a plan for your CIEs. Once you're done with all of this, once you're done with this plan, once you have followed, once you have done 30 MCQs, 7 theory questions for everything, then you move on to yearlies. अब yearlies का एक तरीका होता है, you do 5 yearlies फ्रॉम एनी 5 years, ओके। हम लेट्स सपोज, क्योंकि पहला पेपर थ्योरी का, तो हम थ्योरी पे फोकस करते हैं। आप 5 साल की यील्डीज करें, किसी भी 5 साल, 5 साल में से आप कोई एक एक पेपर निकाल के यील्डी करें, एंड सी व्हाट यू आर स्कोरिंग, व्हाट आर यू स्कोरिंग। अच्छा, जब आप स्कोरिंग देखते हैं तो यू रियलाइज कि वेयर आर यू लैकिंग, एंड व्हेन यू रियलाइज कि वेयर यू आर लैकिंग, यू गो बैक टू द टॉपिकल्स। याद रखिए, यील्डी का सिर्फ मकसद ये होता है कि आपका कोर्स रिवीजन हो जाए, एंड इट टेल्स यू कि वेयर यू आर लैकिंग। At the end of the day, if you know, if you have only done topicals, I know students जिन्हें सिर्फ topicals पे अपने क्या लिया ग्रेड, बट आई नो नो स्टूडेंट, मुझे ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं पता जिसने मुझे कहा सर मैंने सिर्फ ये लीज की थी, मैंने टॉपिकल कभी टच ही नहीं किया। तो इट गोज वन वे बट नॉट द अदर वे अराउंड, ओके। तो यू डू फ्यू yearlies एंड यू रियलाइज कि वेर यू आर लैकिंग, यू गो बैक टू दैट कॉन्सेप्ट, यू मेक श्योर दैट यूर आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो। वंस दैट कॉन्सेप्ट इज क्लियर, यू देन कम बैक टू यूली। तो इट्स लाइक ये एक ना, आप समझे पेंडुलम है, दिस लाइक अ स्विंग। आप yearlies पे आते हैं, आप अपना मुश्किल देखते हैं, आपको मसला क्या है, यू गो बैक टू योर टॉपिकल्स। आप टॉपिकल्स में देखते हैं, टॉपिकल हो गया, समझ आ गया वाला टॉपिक, यू गो बैक, एंड दिस यू गो बैक एंड फोर्थ अंटिल आपका पूरी की पूरी फिजिक्स हो जाए। पूरी फिजिक्स करने का तरीका यही है। एंड वन मोर थिंग, stop running after notes, stop running after fancy notes. You just need, at this point you just need some concise notes. मैं उस दिन देख रहा था ग्रुप में किसी ने 450 पेजेस के नोट्स भेजे हुए थे। एट दिस पॉइंट ऐसी चीज़ें मत भेजा करें। इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, डू नॉट शेयर सच स्टफ नाउ। स्टूडेंट्स को, दे फील वेरी ओवरवेल्म। एंड वन लास्ट, बिफोर आई एंड दिस वीडियो, मैं एक आप सबको सजेशन देना चाहूँगा, एंड दिस इज अ लाइफ एडवाइस इज वेल फॉर ऑल दोज पीपल दैट एक्चुअली नो फिजिक्स, जो अभी अच्छे हैं, जो मदद कर सकते हैं। देखिए, यू शुड ऑलवेज हेल्प पीपल दैट आर स्ट्रगलिंग। गिव योर नोट्स, गिव योर एडवाइस, गिव योर हेल्प। मेरी बात याद है कि खुदा को हमेशा देने वाला हाथ पसंद है। जो हाथ ऊपर होता है ना, वो हमेशा पसंद है, लेने वाला नहीं पसंद, ठीक है। तो ऑलवेज बी द गिवर। अगर आपको कोई चीज़, आपके पास नोट्स हैं, आपके पास रिसोर्सेज, आपके पास वीडियोज, एक्स वाई जी, कुछ भी है, दें लोगों को, गिव इट टू देम। वाई? बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप देंगे, आपको दुआ देंगे लोग, एंड दुआ से ही आपके ग्रेड आते हैं। बिलीव मी, मेहनत अपनी जगह एक जगह, बट कभी कभार ना दुआ प्लेज अ वेरी बिग रोल, अ रोल दैट वी यूजली अंडर एस्टिमेट इन आर लाइफ। हमारे पेरेंट्स की दुआ, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की, हमारे फ्रेंड्स की, पीपल दैट वी हेल्प, मतलब वो खुदा, वो कहते हैं ना, गैबी मदद हमारे लिए आ जाती है। तो दिस इज सम इस्लामिक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट टू इट एज वेल, कि आप हमेशा हमेशा ट्राई टू हेल्प पीपल फॉर फ्री। आई एम मेकिंग दिस वीडियो बिकॉज आई नो मुझे कोई ना कोई बच्चा दुआ देगा, ठीक है, एंड एट द एंड ऑफ द डे जब वो मुझे दुआ देगा, मेरा दिल खुश होगा, ठीक है। एंड दैट इज हाउ आई एम गोना बी लाइक, चलो अल्लाह का शुक्र है। एंड समबडी, आपको क्या पता, आप लोगों की शायद दुआ की जैसे कभी मेरी जिंदगी में कोई आफत आने वाली हो, कोई मुश्किल आने वाली हो, वो टल जाए। एंड दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, कि यू नीड टू हेल्प पीपल आउट। ग्रुप्स में हेल्प करें, अपने क्लास ग्रुप में। ये बखील ना बने, कंजूस ना बने। डू नॉट कीप दिस नॉलेज, डू नॉट कीप दिस ऑल ऑफ दिस स्टफ विद योरसेल्फ। बांटे, बी अ गिवर, always be a giver, okay? And with that, we'll end this video. Inshallah, see you guys in the next